Welcome all of you to our channel physics class. Okay, so today we will start a new chapter, and that it is magnetic effect of electric current. In the previous chapter, that is electricity, we understood many things, like we understood about current, potential difference, resistance, Ohm's law, okay, and many more. At the same time, we also studied about heating effect of electric current. What is heating effect of electric current? When an electric current flows through a conductor which have certain resistance, the conductor gets heated to some extent. Okay, so that is what effect produced by current in a conductor. That is one kind of effect. Here we will study magnetic effect of electric current. That suggests us that मैग्नेटिक इफेक्ट वहाँ पे क्या था, हीटिंग इफेक्ट था, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है. मतलब इलेक्ट्रिक करंट का एक ही इफेक्ट नहीं, और भी इफेक्ट क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अभी मान लो, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग मैग्नेट क्या होता है. सो व्हाट इज ए मैग्नेट? सो ऑल ऑफ यू नो दिस अबाउट दैट मैग्नेट इज अ material. It's a material which attracts metallic objects, not all the metals, but which are, that means some special category of materials are there which are known as ferromagnetic materials. Okay, so ferromagnetic materials are strongly attracted by magnets. For example, nickel, cobalt, iron, etc. Okay, so that is magnet. It attracts those kind of materials. Magnet, first of all, what is, okay, now let us understand about what happens when a current, what will happen when a current is allowed to flow in a conductor, metallic conductor. Suppose AB, this is a metallic conductor, okay, which I have connected to a battery and then key, and here I have put a variable resistor or rheostat. You know na, variable resistor or rheostat. R suffix H I am denoting it by rheostat. Rheostat, what it does actually, it can vary the current in the circuit. So what I am doing, switching on this key, and what will happen, the current will start flowing like this, and it will go in this conductor AB like this. It will go na. Here you put a magnetic needle. Magnetic needle, you know, magnetic needle is a direction finding device. Already you know about this. Magnetic needle, what it shows us, the direction, which direction, in which direction we are, like north, south, etc. It's east and west. Okay, so mainly north south points are mentioned here, north and south, like this. Okay, what we are about to study is nothing but Oersted's experiment. What Oersted did, actually in class 8 also you have learned something about this experiment. Hans Christian Oersted, a scientist, a physicist, in the 19th century, he developed, accidentally he got this observation, okay, in his observation, that when a current was flowing in a conductor, a magnetic needle nearby it got deflected. Okay, ये magnetic needle deflect हो गया जब इसमें करंट फ्लो हुआ. उसको एक्सीडेंटली, मतलब ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन दिखा. ठीक है, तो इसको उसने फर्दर रिसर्च किया, ओस्टेड ने फर्दर रिसर्च किया और इसको परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ किया, तो उसको बहुत सारा ऑब्जर्वेशंस मिला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले. देखो, इसमें अभी करंट फ्लो हो रहा है आई, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, द नीडल विल गेट डिफ्लेक्टेड, ओके, इन सम डायरेक्शन लाइक दिस, और it may deflect like this also, depending on the direction of current flow. Here the current is flowing like this,
so the deflection will be towards this direction. Okay, so when I reverse this polarity of the battery, next what I did, okay, इस बैटरी का पोलरिटी रिवर्स, मतलब ये जो पॉजिटिव लगा ना, इसको निकाल के यहाँ पे लगा दो, इसको यहाँ पे लगा दो, उस केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा। नीडल, मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसने ये भी ऑब्जर्व किया, साथ ही उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि रियो स्टेट से करंट पहले सपोज 3 एम्पियर दिया था, अब उसको इंक्रीज करके 5 एम्पियर कर दिया, तो डिफ्लेक्शन का जो एक्सटेंड था, डिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा हुआ। ठीक है, उसने 10 एम्पियर किया करंट इस सर्किट में, तो देखा कि डिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो डिफ्लेक्शन है ज़्यादा ज़ोर से हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा दूर तक हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से उसने क्या कंक्लूड किया कि इस मेटालिक कंडक्टर के अराउंड कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो सकता है? देखो, एक मैग्नेटिक नीडल, उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है? एक मैग्नेट ही डिस्टर्ब कर सकता है उसको। समझ में आ रहा है मेरा बात? ये मैग्नेटिक नीडल है, वो कब डिफ्लेक्ट हो सकता है? जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो। ठीक है, ये तो कॉपर वायर है। ठीक है, तो ये तो मटेरियल अट्रैक्ट डिफ्लेक्ट नहीं करता है किसी भी, सिंपली, बट इसमें फ्लो क्या हो रहा है? करंट। वही करंट इस डिफ्लेक्शन का कारण बना। ठीक है, वही करंट इस डिफ्लेक्शन का कारण है। कैसे? तो उसको ये समझ में आया कि इस कंडक्टर के अराउंड जरूर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन जा रहा है कुछ देर के लिए। ठीक है, और वही मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक नीडल को क्या कर रहा है? डिफ्लेक्ट कर रहा है। सो दैट इज हिज कंक्लूजन, एंड he concluded, actually he concluded that magnetic field is induced around a conductor when a current flows through the conductor. Okay, so this is Oster's experiment. Okay, so here we write the experiment का सेटअप ये है। ऑब्जर्वेशन क्या था? डिफ्लेक्शन हुआ अगल में, इसमें मैग्नेटिक नीडल में, उसका कंक्लूजन क्या आया ये। अब इसमें और क्या है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हुआ है उसका शेप कैसा होगा। ठीक है, तो उसका शेप होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सपोज इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस हुआ है उसका शेप कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर होगा। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए, इसका शेप और डायरेक्शन मेनली फाइंड करने के लिए हमारे पास एक रूल है, एक लॉ है, एंड दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, या फिर और एक लॉ है राइट हैंड स्क्रू रूल, एक और है। ठीक है, तो कॉर्क स्क्रू रूल बोलते हैं उसको हम लोग। तो उस रूल से भी आप फाइंड कर सकते हो, चाहे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से भी इसका डायरेक्शन हम लोग, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है। वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर है, इसीलिए उसका डायरेक्शन भी होगा। जैसे कि एक्सीलरेशन एक वेक्टर है ना, उसका क्या है? डायरेक्शन भी है। समझ में आया? वैसे ही इसका भी डायरेक्शन होगा। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, सब उसके पहले मैं ये बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? किसी भी मैग्नेट के आसपास कुछ ऐसा रीजन होता है, कुछ इफेक्टिव एरिया होता है, मतलब रीजन होता है, जिसमें अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आए तो उसके ऊपर क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। आर यू गेटिंग? सपोज एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। ठीक है, इसका कुछ एक पार्टिकुलर रीजन होगा जिसके अंदर तक तुम आयरन का नेल छोटा सा टुकड़ा रख दोगे तो क्या होगा? ये इसको अट्रैक्ट करने में सक्षम होगा। आर यू गेटिंग? मतलब कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर इसका फील्ड का असर हो रहा है, इस मैग्नेट का, ये इसका एरिया है, मतलब इसके अंदर तुम जाओगे, ये इसका एरिया है, इसके अंदर जाओगे तो ये अफेक्ट करेगा ही तुमको। ठीक है, लाइक दैट। सो मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन अराउंड ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? उसके किसी भी मैग्नेट के आसपास का रीजन। तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वायर जैसे वायर ए भी, मतलब कंडक्टर ए भी क्या करेगा? जब करंट फ्लो होगा तो इस वायर कंडक्टर के आसपास क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि ए बी जो वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है इसको भी जान लो थोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी वर्ड का मतलब स्ट्रेंथ, ओके। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अराउंड ए मैग्नेट। अगर एक मैग्नेट है, ठीक है, जिसका दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, तो इसका कुछ फील्ड होगा, ठीक है। इस फील्ड में मुझे कहीं पे भी, सपोज इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो अमाउंट जानना है, मतलब उसका स्ट्रेंथ जानना है, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही चीज़ है, बस इंटेंसिटी वर्ड का मतलब क्या, स्ट्रेंथ है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। सो यू कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अराउंड ए मैग्नेट, लाइक दैट, ओके। ये एक्सपेरिमेंट का यूज क्या है, तो इस एक्सपेरिमेंट के होने के बाद ही, ऑस्टेड का इस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ, इलेक्ट्रिक जनरेटर एट्सेट्रा, बहुत सारे डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक फैन, तुम सोच भी नहीं सकते इतने सारे डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यही प्रिंसिपल यूज होता है, समझ में आया। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कुछ मैग्नेटिक मैग्नेट्स का, सपोज एक मैग्नेट है, सपोज मेरे पास लाइक दिस, इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा एक मैग्नेट होता है जिसका दो पोल है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इस मैग्नेट को बोलते हैं हम लोग क्या, बार मैग्नेट, ठीक है। जनरली मैग्नेट बहुत सारे देखे होंगे तुम लोगों ने, जो हम लोग क्लास 10 में मेनली पढ़ेंगे, मैं वही बता रहा हूँ। पहला बार मैग्नेट हम यूज करेंगे और दूसरा मैग्नेटिक नीडल यूज करेंगे, जो कि ये है। मैग्नेटिक नीडल ऐसा होता है, कुछ शेप, ठीक है, नॉर्थ साउथ, एक सपोर्ट लगा होता है, पाइवोटेड होता है, यहाँ पे फिक्स्ड होता है, मतलब यहाँ पे रोटेट हो सकता है, ये डिफ्लेक्शन हो सकता है इसका। तीसरा हम लोग यूज करने वाले हैं हॉर्सशू मैग्नेट, लाइक दिस, हॉर्सशू मैग्नेट इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो पोल्स होता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। ये इज ए मैग्नेट, ओके। लेट अस सी लाइक दिस इज ए मैग्नेट। द field around the magnet, we will not be able to see it by our eye, obviously they are not visible to us. So to represent them, to realize them how they look, to represent them, or to imagine them, what we do, we draw some kind of curve or lines, okay, curved lines actually, which will represent it. That means the magnetic field, how they look, their shape will be represented by what, magnetic field lines. So magnetic field lines are nothing but the imaginary lines drawn to represent, okay, magnetic field lines have certain properties, those are very important, they come in exam. वो प्रॉपर्टीज है इसके कुछ। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं पहले ये जान लेते हैं। सपोज एक बार मैग्नेट है मेरे पास, एक बार मैग्नेट है सपोज ऐसा, दो पॉइंट है नॉर्थ और साउथ, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, कैसा दिखेगा मुझे, हालांकि मुझे दिखेगा नहीं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, ओके, इमेजिनरी लाइंस बनाओगे, तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, नॉर्थ। So this is the magnetic field line around a bar magnet, okay. So ये है हमारा magnetic field line around a bar magnet,
ठीक है। तो ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसमें देखो एरो इंपॉर्टेंट है, एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, दोनों तरफ ऊपर। अच्छा ये वाला पूरा ऐसा कहीं ड्रॉ किया बिकॉज ये बहुत बड़ा कर्व होगा, फिर ये भी बहुत बड़ा कर्व होगा, इतना बड़ा बड़ा लूप सब हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए हम लोग दो ड्रॉ किया और बाकी को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, ये बार मैग्नेट के लिए है। अगर मान लो किसी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म का मतलब पता है ना कि बराबर स्पेसिंग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, और स्ट्रेंथ इक्वल है उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बना सकते हो, देखो इसमें हर एक में बराबर स्पेसिंग होगा, हर एक में बराबर स्पेसिंग, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने बिकॉज ये यूनिफॉर्म है। कुछ किसी पार्टिकुलर रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा सकते हो तुम। कभी कभार आता है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, ओके, लाइक दैट, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट, ओके, लाइक दैट क्वेश्चन कम्स। सो उसके बाद स्ट्रेट कंडक्टर में भी हम लोग जानेंगे कुछ देर बाद में। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ magnetic field lines. The first property is, you can see that magnetic field lines start from north pole and end at south pole. No, magnetic field lines do not start from anywhere. That means ये तो एक continuous पूरा एक कर्व है, देखो पूरा क्लोज है, ये ऐसे, ये कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा, कहीं एंड नहीं हो रहा है। हालांकि ये इमर्ज हो रहा है नॉर्थ से, मुझे दिख रहा है कि नॉर्थ से इमर्ज हो रहा है, अंदर तो नहीं, मतलब हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे बोल सकते हो कि दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ, लाइक ऐसे बोल सकते हो, बट दे डू नॉट एक्चुअली इमर्ज और दे डू नॉट एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, दे आर ऑलवेज क्लोज कर्व। तो पहला लिख देता हूँ, दे फॉर्म क्लोज्ड कर्व, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, दे कैन नेवर बी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कहीं कहीं लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड, अच्छा दूसरा ये प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को, काटेगा नहीं, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, इसमें क्वेश्चन भी इसका एनसीईआरटी में, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज देखो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है, सपोज किसी भी रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा है, दूसरे ने इसको इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे, सपोज देखो हमें ऐसे समझते हैं कि मान लो इंटरसेक्ट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोग उस कॉन्सिक्वेंस को देखते हैं। सपोज इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया दो, नंबर 1 नंबर 2, तो 1 at this point of intersection for magnetic field line 1, number 1, what we can do, we can draw a tangent to know the direction of magnetic field at this point P. Similarly, we can draw a tangent for the second line also. From one point, two tangent can never be possible. देखो एक पॉइंट से हमेशा तुम सर्कल में एक ही या फिर किसी कर्व में एक ही टेंजेंट बना सकते हो, दो टेंजेंट कभी भी नहीं बना सकते, ठीक है। ये पूरा मतलब मैथमेटिकल रूल ही है परफेक्ट, बिकॉज टेंजेंट क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट या फिर एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन, नंबर 1 के लिए ये डायरेक्शन, नंबर 2 के लिए ये डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि नंबर 1 के लिए दो डायरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा,
डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, तो तीसरा प्रॉपर्टी उसी को लिखता हूँ मैं। पहले ये समझ लो, इसको लिख देता हूँ मैं कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, tangent drawn at any point on magnetic field lines gives its direction at that point। मतलब कि मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। यही टेंजेंट मेरे को बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, स्ट्रेंथ का डायरेक्शन क्या है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट दिस पॉइंट क्या है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर 1 और 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के लिए 2 टेंजेंट ड्रॉ किया। पहला लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए पहला टेंजेंट, दूसरे लाइन के लिए दूसरा टेंजेंट, लेकिन एक पॉइंट पे 2 टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये होगा, मान लो एक मैग्नेट है। अब इसी मैग्नेट की बार मैग्नेट की बात कर लेता हूँ, और भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूँगा कुछ ऐसा होगा। मतलब कि तुम ये देखोगे कि मैग्नेट से तुम जितने दूर जा रहे हो, मैग्नेट से हम लोग जितने ही दूर जाएंगे क्या होगा, उतना ही ज़्यादा गैपिंग बढ़ेगा, कि फील्ड का मतलब स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाओगे उसका स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी कमते जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा इन लाइंस का मैग्नेटिक लाइंस का जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, या फिर स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन indicates the strength of magnetic field। okay, so these are the 4 properties। some additional property also may be there, like you can like this gaping, the space between the magnetic field lines gradually goes on decreasing as we move away from the magnet। like this you can add more properties also, but these are the 4 main properties of magnetic field lines okay, around any magnetic material। so question arises here that why 2 magnetic field lines can never intersect each other। okay, so that is important, you should be able to write its answer।